So, first of all, I will discuss this assignment because students have issues in joining the some issues were there in the sharing of this Google Doc. So, I have changed some rights and also the name and details of the assignment, and I hope now all the students now anyone don't have any problem in accessing and writing and resubmitting the assignment. Okay, Tanix Saxena and Tanix Daya. I got this, no issues. And now no one I please don't send me the roll numbers right now. I will ask for the attendance in the end of the class. अभी के लिए okay, I will share about I will discuss this Maxwell theories and equation assignment for another 5 minutes. If you still have any problem, if you still have any problem in accessing the assignment, please let me know, so that in future I will rectify all these small issues. अगर किसी को प्रॉब्लम है अभी भी असाइनमेंट को एक्सेस करने में तो मुझे अभी बताइए प्लीज़. अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है सारे स्टूडेंट्स को? Okay. So these were the this is the assignment, and instructions were given in the Google Doc. Now I will open in front of you the student work. Here 35 students have returned and made the assignment, and still 20 students are not submitted their assignment. So that is why I am asking to all of you that is there any issue, still there is an issue in accessing this assignment of Maxwell theories and EM waves. क्या अभी भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? For example, I will open the assignment of Rahul. Rahul, are you present? Okay. So I will. I will show to you the assignment of Rahul and of Nishita also. Okay, first of all, see, because some students were saying to me that there is an issue that they don't have laptops or any device to write in the Word or any document file. So they requested to upload the handwritten notes.
So that is why I have shown you one of the uploaded handwritten notes by Rahul, roll number 919171. Uh, he has written this assignment in a very well form, and it is very good. Also, I will show you one more assignment of Nishita. Nishita, the problem is this, that you have written very well, but please, whenever you start writing any assignment, there must be the front page, assignment number 1, submitted by and submitted to. ये फ्रंट पेज जो है हमारे, उसके अंदर ये ज़रूर होना चाहिए कि किसकी असाइनमेंट है. अब ये मैं किसको, निशिता आपकी है ना ये? हाँ, मगर इसमें आपने कुछ लिखा नहीं है ना. हाँ, वो इशू हो जाता है वो. अच्छे अभी तो चलो ठीक है, ये ऑनलाइन है. अगर आपको मेरे को सबमिट करानी हो तो आप कैसे कराओगे सबमिट? अब अपने लिखोगे ना असाइनमेंट 1, असाइनमेंट सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू, है ना. सो आगे से हमेशा सभी स्टूडेंट्स को चलो आज ये पहली बार है, कोई इशू नहीं है. आगे से जब भी मैं असाइनमेंट दूंगा, आपने नो डाउट आपने भी काफ़ी अच्छी असाइनमेंट बना रखी है. इट इज़ वेरी गुड. सो लुक दैट आप सभी स्टूडेंट्स अगर आप देख पा रहे हैं तो मैक्सवेल इक्वेशन की इसने पूरे हेडिंग्स बना रखे हैं. एंड वी you and I, we directly can go to the main heading topics of the assignment. So this is a very good assignment for you, for your reference. Two more I will open of Mr. Abhishek and Pooja. And the students which have not submitted this, there are 35 students who have submitted, and there are 20 students whose assignment is still pending. These are the students: Shokat, Harsh, Utkarsh, Ayushi, Naman, Arun, Manit. These students have still, they have not submitted anything. So I request you to please submit. So like this, Abhishek has written everything very nicely, and his assignment is very good. So this is for the students who are still in a dilemma that how to write the assignment. The Pooja also have not written anything, so there should be a proper way. Okay, Pooja, if you are present in the class, please see what are the because you have not included the front page, so there must be your name, roll number. Okay. ओके ठीक है, चलो असाइनमेंट के बारे में काफ़ी डिस्कस हो गया. अभी भी अगर किसी को कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो हम अपनी क्लास की तरफ, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. सो मैंने लास्ट आपका जो लेक्चर लिया था फ्राइडे को, उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल्स पे मैं डिस्कस कर रहा था. मैंने एग्जांपल्स बताए थे पेजिंग सिस्टम एंड आल्सो दी कोडलेस फ़ोन सिस्टम. ये दो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे. तो कोडलेस फ़ोन सिस्टम के ऊपर मैंने अपना लास्ट लेक्चर मैंने एंड
सॉरी किया था कोडलेस फ़ोन सिस्टम के ऊपर। तो कोडलेस फ़ोन सिस्टम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारा जो लैंडलाइन सिस्टम है, फॉर एग्जांपल BSNL या फिर MTNL का, वो हमारा टेलीफोन नेटवर्क है, उसको हमने वायरलेस बना दिया विद द हेल्प ऑफ ए कोडलेस हैंडसेट एंड ए बेस स्टेशन दैट इज़ आल्सो नोन एज ए फिक्स्ड पोर्ट। फिक्स्ड पोर्ट या बेस स्टेशन के साथ हमने एक कोडलेस हेडफोन दे दिया है। तो दिस वाज दी कोडलेस फ़ोन सिस्टम। मगर इसकी ड्रॉबैक एक थी, सबसे बड़ी ड्रॉबैक, दैट दिस टाइप ऑफ फ़ोन सिस्टम कैन ओनली बी यूज्ड विद इन ए फिक्स्ड एरिया। एक फिक्स्ड एरिया के अंदर ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हेलो हेलो, माय साउंड इज़ क्लियर और नॉट? Supriya is saying sound is not clear. Okay, Muskan is saying sir can you check mine, मुझे सबमिट करने में दिक्कत आ रही। मुस्कान, मुस्कान आपकी असाइनमेंट है इसके अंदर अपलोडेड है, यू कैन। ओके, मुस्कान शर्मा, मुस्कान शर्मा की तो कोई असाइनमेंट अभी आई नहीं है। ओके मुस्कान, अगर आपको कोई इशू है तो क्लास के बाद मैं आपसे बात करूँगा। ओके, सो राइट नाउ वी विल फोकस ऑन दी आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो इसकी जो ड्रॉबैक थी हमारे कोडलेस फ़ोन सिस्टम की, वो ये थी कि उसकी रेंज काफ़ी लिमिटेड थी। हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल घर के अंदर ही हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं अगर हमारा कोडलेस सिस्टम था। तो अब हमें डिमांड ये लगी कि हमारी जो रेंज है वो वायरलेस लिंक की वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, PSTN तो यूँ का यूँ रखा और इसके आगे से ये निकाल दिया फिक्स्ड पोर्ट बेस स्टेशन, और ये निकाल दिया, और उसकी जगह हमने एक बेस स्टेशन लगा दिया, एक बड़ा बेस स्टेशन दैट इज़ नोन एज ए BTS, जिसको आप टावर कहते हैं, मोबाइल का टावर कहते हैं। उसकी हाइट हमने इंक्रीज़ कर दी, जिसके कारण उसका एरिया इंक्रीज़ हो गया, और एरिया इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, हमारा जो वायरलेस लिंक अब हम काफ़ी दूर तक उसकी रेंज हो गई है। तो एंड दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज़ नोन एज ए सेलुलर सिस्टम, उसको हम कहते हैं सेलुलर सिस्टम। ये हमारा कोडलेस फ़ोन सिस्टम था, ये हमारी इंस्पिरेशन है फॉर दी मोबाइल फ़ोन। हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो इसी सिस्टम से इंस्पायर्ड है, जो कि छोटा रूप था हमारे मोबाइल फ़ोन का, इसकी रेंज काफ़ी कम थी, फीचर्स कम थे। मगर अब हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा मोबाइल फ़ोन हमारा, आप वीडियो लेक्चर कर रहे हैं, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप सोशल नेटवर्किंग कर रहे हैं, सो एवरीथिंग इज़ यू आर डूइंग ऑन योर फ़ोन इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम। ये हमारा सिस्टम है जिसको हम नाम देते हैं सेलुलर सिस्टम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ 3 चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। एक तो बेस स्टेशन, जिसको हम एंटीना भी कहते हैं, उसका एक एरिया दिखा रखा है, ये एक एरिया है, उसके अंदर कोई व्हीकल मूव कर रहा है। सो
हमने काफ़ी सारे बेस स्टेशंस लगा दिए हैं टू कवर अप द होल जोग्राफिकल एरिया। हमें एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हरियाणा के का पूरा जो जोग्राफिकल एरिया है उसको कवर करना है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल विद दी वन एंटीना, एक एंटीना से पॉसिबल नहीं है वो। तो हमने क्या किया, पूरे जोग्राफिकल एरिया के अंदर हमने कई सारे एंटीनास इंस्टॉल कर रखे हैं। तो आप चेक भी कर सकते हैं, आप जब देखते हैं डेली आप कुछ डिस्टेंस के बाद दोबारा से कोई एंटीना कहीं और दिख जाता है, कभी कहीं दिख जाता है। सो दैट वी हैव टू कवर दी होल जोग्राफिकल एरिया। एक जो भी हमको जोग्राफिकल एरिया दे रखा है, फॉर एग्जांपल हरियाणा पूरा हमें कवर करना है, पूरी स्टेट कवर करनी है, तो काफ़ी सारे हमने एंटीनास लगा रखे हैं। सो दीज आर दी बेस स्टेशंस, इनको हम बेस स्टेशंस कहते हैं। इन बेस स्टेशन से हमारे मोबाइल फ़ोन्स कनेक्टेड हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ दिखा रखी हैं, गाड़ियों के अंदर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ नोन एज दी बेस स्टेशंस एंड सेलुलर सिस्टम। इसका नाम सेलुलर सिस्टम इसलिए है क्योंकि ये जो एरिया है, जो एक हेक्सागोनल की फॉर्मेट में दिखा रखा है मैंने आपको, जो कि एक बेस स्टेशन का एरिया दिखा रखा है, दिस इज़ नोन एज ए सेल। इसको हम सेल कहते हैं। दिस इज़ नोन एज ए सेल। इसको जो नाम दिया गया है वो सेल के नाम से इसको हम जानते हैं। सो काफ़ी सारे सेल्स हैं इसके अंदर, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ए सेलुलर सिस्टम। इसीलिए इसका जो नाम है वो सेलुलर सिस्टम है। ये सारे बेस स्टेशंस जो हैं वो सारे के सारे कनेक्टेड हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा अपने स्क्रीन के ऊपर, टू ए पॉइंट दैट इज़ नोन एज MSE। MSE की फुल फॉर्म है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। सो इन दिस ए सेलुलर सिस्टम द टावर्स रिप्रेजेंट द बेस स्टेशंस। यहाँ बेस स्टेशंस है विच प्रोवाइड द वायरलेस लिंक बिटवीन द मोबाइल यूज़र एंड द मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इसको हम कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। क्या है, कैसे काम कर रहा है, हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स के अंदर, स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे इसको, मगर अभी के लिए इसका जो नाम है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इसका जो फुल फॉर्म है MSC की वो है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इससे हमने क्या किया, सारे बेस स्टेशंस को कनेक्ट कर रखा है और ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर कनेक्टेड है हमारे PSTN से। सो दिस इज़ ए एग्जांपल ऑफ दिस। यहाँ PSTN था, यहाँ एक ही बेस स्टेशन था जिसका नाम था फिक्स्ड पोर्ट, और फिक्स्ड पोर्ट से हमारा वायरलेस लिंक कनेक्टेड था। मगर अब हमारे कोडलेस की बजाय सेलुलर सिस्टम के अंदर PSTN तो यूं का यूं रहा, और उसके साथ अब इंस्टेड ऑफ बेस स्टेशन नाउ ए MSC इज़ कनेक्टेड, दैट इज़ द फुल फॉर्म इज़ मोबाइल स्विचिंग सेंटर। और उस MSC से जहाँ एक बेस स्टेशन था उसकी बजाय अब काफ़ी सारे बेस स्टेशंस आ गए हैं, जिससे हमने अपने सब्सक्राइबर्स को कनेक्ट कर दिया है। सो दिस इज़ नॉन एज ए सेलुलर सिस्टम। सो यहाँ मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर आपको एलाबोरेट कर रखा है कि कैसे एक सेलुलर सिस्टम काम कर रहा है। सो बेस स्टेशंस दैट आर आल्सो नोन एज टावर, जिसको हम टावर कहते हैं जनरली, उसका जो असली नाम है दैट इज़ दी बेस स्टेशन। बेस स्टेशन प्रोवाइड्स दी रेडियो एक्सेस। मैंने बताया हमारा जितना भी काम है, मैंने आपको दो तरह की वेव्स बताई थी, माइक्रोवेव्स एंड दी रेडियो वेव्स। तो हमारा जितना भी काम है वो हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर है वो रेडियो वेव्स के ऊपर है। सो बेस स्टेशंस प्रोवाइड रेडियो एक्सेस बिटवीन द मोबाइल एंड द मोबाइल स्विचिंग सेंटर। हमारे जो मोबाइल यूज़र हैं और मोबाइल स्विचिंग सेंटर है उसके बीच में जो वायरलेस लिंक है वो प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बेस स्टेशंस। सो दिस इज़ द सेलुलर सिस्टम विच हैव थ्री मेन पार्ट्स, द बेस स्टेशन, द मोबाइल स्विचिंग सेंटर एंड PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ये हमारे तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सो एग्जांपल्स ऑफ मोबाइल रेडियो सिस्टम। मोबाइल, व्हाट इज़ ए मोबाइल? मोबाइल की डेफिनेशन मैंने लिख रखी है यहाँ पे। डिस्क्राइब्स ए रेडियो टर्मिनल अटैच्ड
to a high speed mobile platform. A cellular phone in a fast moving vehicle is also known as a mobile. So mobile का नाम मोबाइल इसलिए लिखा गया बिकॉज इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसकी स्पीड कितनी भी हो सकती है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ए मोबाइल. कई बार हम उसकी वो दूसरे टर्म से हम कहते हैं पोर्टेबल. पोर्टेबल का मतलब ये है कि दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट एक्चुअली एट दैट एनी टाइम इट इज़ नॉट मूविंग, और it is moving at a very slow speed. So portable describes a radio terminal, एक mobile phone that can be handheld and used by someone at a walking speed, जिसकी स्पीड काफ़ी कम है और जो अभी स्टेशनरी है, that device is known as a portable device. So subscriber, who is a subscriber, मोबाइल और पोर्टेबल यूज़र को हम जो डिफाइन करते हैं एज ए सब्सक्राइबर. एंड बेस स्टेशन link mobiles through a backbone network. So this is a backbone network, mobile switching center and PSTN. This is backbone network. इस नेटवर्क का हमें नहीं पता क्या है, हमें तो सिर्फ अपना फ़ोन है और फ़ोन से हम कनेक्टेड हैं एक बेस स्टेशन से. सो ये दिस इज़ नोन एज द फ्रंट एंड, द लिंक बिटवीन द वायरलेस लिंक बिटवीन द मोबाइल यूज़र एंड द बेस स्टेशन इज़ नोन एज द फ्रंट एंड, and the link between the mobile switching center and the base station is known as the back end. तो बैक एंड के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं. हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी बहुत हमारे पास फ्रंट एंड की ही इन्फॉर्मेशन है, और वो भी ज़्यादा नहीं है. मगर हमारा जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सारे स्टूडेंट्स को बैक और फ्रंट दोनों एंड की कंप्लीट नॉलेज हो जाए ऑफ हाउ योर मोबाइल फ़ोन इज़ वर्किंग. आपका मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है, कैसे उसके ऊपर रिंग आती है, कैसे आप फ़ोन को पिक करते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे आप स्पीड में जब मूव करें तो क्या होगा आपके फ़ोन को, आपकी जो कॉल ड्रॉप हो रही है, आपके नेटवर्क में इशू आ रहा है, वो इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं और उनको हम ठीक कैसे कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस के अंदर है. तो ये आपके डेली लाइफ से जुड़ी चीज़ें हैं, और दैट इज़ वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेन सम नॉलेज इन दिस सब्जेक्ट. इसलिए ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली बात है हमारे जो जॉब्स हैं वो भी इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा है. मैंने आप लोगों को एक लिंक भी भेजा था ऑफ दी ऑनलाइन कैंपस प्लेसमेंट. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स ने उस पर रजिस्टर कर दिया होगा, बिकॉज नाउ यू हैव टू स्टार्ट फेसिंग द इंटरव्यूज़. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जो भी हमारे यहाँ पे ऑनलाइन कैंपस प्लेसमेंट आएंगी, अभी आगे और भी आएंगी, सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ सभी के सभी रजिस्टर करें. होए या ना होए वो अलग बात है, मगर आपको एक्सपीरियंस गेन होगा इस चीज़ से. ऐसा नहीं है कि ये शर्माने की बात नहीं है कि मेरा नहीं होगा और उसका हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स निकलेंगे इस चीज़ से. आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या प्रोसेस है. सो आज नहीं होगा तो नेक्स्ट में हो जाएगा, नेक्स्ट में नहीं होगा तो उससे नेक्स्ट में हो जाएगा, मगर आपका ज़रूर हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे अपनी स्टडीज़ के ऊपर और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर. तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ जो भी हमारी कैंपस प्लेसमेंट के लिए कोई भी कंपनी आती है तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी रजिस्टर करें, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, सो हमारा जो सेलुलर सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, बेस स्टेशन, मोबाइल स्विचिंग सेंटर और PSTN. सो तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हम बहुत बैकबोन नेटवर्क और फ्रंट एंड नेटवर्क दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ द टाइप्स ऑफ मोबाइल रेडियो ट्रांसमिशन मैंने कई बार बता दिया है. सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ये तीनों मैंने आपको डिटेल में बता रखी हैं. नाउ आई विल फोकस ऑन दिस थिंग दैट how our mobile user is connected to the base station. हमारा मोबाइल यूज़र बेस स्टेशन से कैसे कनेक्ट है, सबसे पहले हम इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे.
हमारा जो सेलुलर सिस्टम है, हमारा मोबाइल है, वो वायरलेस कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे लिए। मगर उसके अंदर एक सबसे जो आपको इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि हमारा जो बेस स्टेशन से आपके मोबाइल तक का जो लिंक है दैट इज़ ओनली वायरस, सिर्फ यही लिंक वायरस है। बाकी सारे के सारे जो बैक एंड पे जो आपको लिंक दिखाई दे रहे हैं वो कोई भी वायरलेस नहीं है। वो सारे के सारे जो बेस स्टेशंस हैं, जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर से मैं आपको दिख रहे हैं कनेक्टेड हैं, दीज लिंक्स आर वायर्ड कम्युनिकेशन and obviously that MSC to PSTN, it is also a wired system। हमारा सारा बैकएंड जो है वो वायर्ड है। वो वायर हम या तो कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं, मगर आज के टाइम पे हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हमारे सारे के सारे बेस स्टेशन, हमारे टावर्स जो हैं MSC से थ्रू ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टेड है। और हमारी MSC जो है वो भी PSTN से ऑप्टिकल फाइबर से ही कनेक्टेड है। ओके, दैट इज़ वाई 7th सेमेस्टर के अंदर ऑप्टिकल फाइबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, और इसीलिए वो आपके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए आपके सिलेबस के अंदर है। बिकॉज वायरलेस कम्युनिकेशन जो है, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे सेटेलाइट पढ़ो, चाहे रडार पढ़ो, चाहे डेटा कम्युनिकेशन पढ़ो, चाहे वायरलेस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसके अंदर जो बैकएंड है वो काम कर रहा है आपका ऑप्टिकल फाइबर पे। तो ऑप्टिकल फाइबर भी इतना ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट या टॉपिक है हमारे लिए। सो ऑप्टिकल फाइबर आप पढ़ ही रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप अच्छे से पढ़ें। कोई इश्यूज आते हैं तो वो ज़रूर डिस्कस कीजिए वहाँ पे। और वायरलेस कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट दी वायर्ड कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि मोबाइल के टावर है, टावर से हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो सारा का सारा वायरलेस है। वायरलेस सिर्फ और सिर्फ हमारा जो सब्सक्राइबर है और बेस स्टेशन है, यही लिंक वायरलेस है। बस आपने किसी दूसरे को फ़ोन किया तो ये नहीं है कि ये फ़ोन सीधा यहाँ से बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन पे गया और उस पर्टिकुलर सब्सक्राइबर के पास चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आपने किसी भी अपने फ्रेंड को फ़ोन किया तो वो सबसे पहले जाएगा बेस स्टेशन पे, बेस स्टेशन से जाएगा MSC के ऊपर, MSC से जाएगा PSTN के ऊपर। यानी कि अल्टीमेटली क्या है, आपका जो आप अभी तो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, पहले आपके घरों के अंदर लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे जिस पे आप फ़ोन पे बात करते थे। तो लैंडलाइन फ़ोन के अंदर क्या था, हर एक एक्सचेंजेस बना रखे हैं हमने हर सिटीज़ के अंदर। तो हमारे फ़ोन जो कॉल है, जिसको हम ट्रंक कॉल कहते हैं, वो कॉल सबसे पहले एक्सचेंज में जाती है। एक्सचेंज के बाद एक्सचेंज फाइंड आउट करती है वो पर्टिकुलर फ़ोन नंबर कहाँ है, और वहाँ से वो दूसरे एक्सचेंज में, और वहाँ से फाइनली उस एंड सब्सक्राइबर तक जाती है। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, बस डिफरेंस क्या आ गया है, हमने PSTN जो हमारा लैंडलाइन सिस्टम था PSTN, इसको एक्सटेंड कर दिया है और इसको आज के टाइम पे हमने बना दिया है वायरलेस। तो उसके लिए हमने इसके अंदर दो चीज़ें लगा दी, एक MSC लगा दी, एक बेस स्टेशन लगा दिया, और यूज़र जो थे उनको हमने एक फ़ोन पकड़ा दिया। तो यूज़र और बेस स्टेशन के बीच में जो हमारा जो लिंक है दैट इज़ वायरलेस, वही हमने वायरलेस रख रखा है। तो जब भी कोई यूज़र फ़ोन करता है किसी अपने फ्रेंड को, तो सबसे पहले वायरलेसली वो इन्फॉर्मेशन जाती है बेस स्टेशन को, बस। उसके बाद हमारा जो लिंक है दैट इज़ वायर्ड, वो MSC के पास जाएगी, और MSC से हमारी PSTN के पास जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है आपने एयरटेल का सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा है या वोडाफोन का या आइडिया का, तो सिर्फ आप उसी से कनेक्टेड हैं। आपका जो सब्सक्रिप्शन प्लान है दैट इज़ लिमिटेड ओनली फ्रॉम बेस स्टेशन टू योर एंड फ्रॉम दिस बेस स्टेशन टू MSC तक ही वो प्लान लिमिटेड है। ये जो इतना एरिया है ये वोडाफोन या एयरटेल आप कह सकते हैं, मगर जो पीछे का जो एरिया है, ये जो एरिया है दिस PSTN, ये है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर PSTN है, किसी और कंट्री में कोई और टेलीफोन नेटवर्क होगा। हमारे यहाँ पे
जो टेलीफोन नेटवर्क है दैट इज़ ऑफ BSNL। तो कोई भी जनरेशन आए, 3G आए, 4G आए, 5G आए, दैट आर लिमिटेड टू ओनली दिस रीजन, इसी रीजन तक ही लिमिटेड है। हमारा जो बैकएंड है वो स्टिल BSNL है। तो ये नहीं है कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हमने मोबाइल फ़ोन ले लिया है तो हमारी लैंडलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको ये तो डिस्पोज ऑफ हो गए, कंपनियां बंद हो जाएंगी। BSNL के बिना आपका फ़ोन कभी काम नहीं कर सकता। हमारा जो बैकएंड है वो BSNL है। टेलीफोन नेटवर्क जो है उसके बिना हमारा सेलुलर सिस्टम नहीं हो सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस सेलुलर सिस्टम इज़ एक्सटेंशन ऑफ PSTN को हमने एक्सटेंड कर दिया है। हमारा टेलीफोन नेटवर्क था वो ऑब्सोल्यूट हो गया था। हमें जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने कहा कि हमें तो एक जगह से दूसरी जगह पर अपना फ़ोन लेके चलना है भैया, ऐसा नहीं है कि फ़ोन या तो घर पे पड़ा है या ऑफिस पे पड़ा है, फ़ोन हमारे पास रहना चाहिए। तो क्या किया गया है, PSTN जो हमारा है उसको हमने वायरलेस कर दिया है, और उसके आगे हमने दो चीज़ें लगा दी हैं, वो MSC और एक बेस स्टेशन, और आपके हाथों में एक फ़ोन पकड़ा दिया है, एंड ये हमारा बन गया है सेलुलर सिस्टम। दिस इज़ नॉन एज ए सेलुलर सिस्टम। ओके, सो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही है। कल हम हमारा जो ये लिंक है बिटवीन दी बेस स्टेशन एंड दी यूज़र, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज का जो लेक्चर मैंने आप बताया है ये मैं अपलोड कर दूँगा, इसका वीडियो भी, और ये PPT मैंने ऑलरेडी अपलोडेड है, और अगर आप बुक में से पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। So I request all the students to please focus on